Okay, guys. We move to the sway frame. Okay. Question 1. We took 2 questions actually. उसमें से का question 1 for sway. इसके कुछ स्टेप्स आपको जैसे कि रोटेशनल स्टिफनेस फैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट स्टिफनेस फैक्टर ये गेट पे पूछ सकता है. Entire question not asked in gate. Six meter. I. 2I. 4 meter. There is 6 meter. There is I. Okay. So firstly, step number 1. आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्पेम स्वे है या नॉन स्वे. तो मैंने यहाँ पे हेडिंग में ही लिख लिया स्वे. बट स्वे होने के कारण यहाँ पे 2 है. एक है अनइवन सपोर्ट. Here is fixed support. Here is hinge support. And here is load. अगर यहाँ पे दोनों जब भी फिक्स सपोर्ट रहते थे और सभी सिमेट्रिकल रहता था, लेकिन यहाँ पे लोड है, हॉरिजॉन्टल लोड, हॉरिजॉन्टल लैटरल लोड आपका 10 किलो न्यूटन लग रहा है, तो वो लैटरल लोड आपका क्या दे रहा है? लैटरल स्वे दे रहा है. दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट. दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट कॉजिंग अ लैटरल स्वे. ओके, सो दैट्स व्हाई स्वे का ऑकर होने के कारण यहाँ पे 2 है. ओके, नाउ वी मूव टू द स्टेप 1. फ्रिक्शन मोमेंट. FEM. M bar AB. Suppose this A, B, C and D. M bar AB it is equals to M bar BA it is equals to 0. M bar BA it is equals to minus WL square by 12. M bar BC. CB it is equals to WL square by 12. And here is M bar CD it is equals to M bar DC 0. How much this? 2 minus 26.67 plus 26.67. Step number 2. Calculating rotational stiffness factor, RF. Step number 2. Calculating rotational stiffness factor, RF. Joint, member, rotational stiffness.
total, sorry, relative stiffness, not a rotation, relative stiffness. Total relative stiffness. And next it is RF. RF it is equals to minus half of K upon summation of K. Here is joint B and C. We took this joint B and joint C. 1 minute, guys. BA, BC, CB, and CD. Here is C is hinge. Sorry, D is hinge. Intermediate, and fixed. So that M into I by L. So M it is 1, 1, 1, 0.75 or 3 by 4. I by L, I it is 1, यानी I by 6. Here is again I by 2I by 4. 2I by 4. I by 6. So we'll write this 3 by 4. यानी I by 8. I by 2. I by 2. I by 6. What is summation? What is summation? I by 2 plus I by 8. Ten by 16 ना? I by 16. हाँ. 10 by 16. 10 by 16. And this is 8I by 12. 8 by 12. 12. हाँ, इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ है नहीं है, लेकिन नहीं रिड्यूस किया तो भी चलता क्योंकि डिवाइडेशन में ही है. अब बताओ अब आरएफ कितना निकलता? दिस I by 6 डिवाइड बाय 8 by 12. व्हाट इज योर वैल्यू? माइनस इंटू माइनस 1 by 2. रेशियो में बताओ प्लीज. आई वांट इन रेशियो, बिकॉज ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू के लिए रेशियो ही चाहिए, तभी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती. One by 8. Okay, here is minus 1 by 8. I get cancelled. And here is I by 2 divided by 8 by 12. 8 by 12 को आप 3 by 4 भी लिख सकते हैं, that is 3 by 4. minus 3 by 8. नहीं, 3 by 4. Minus 3 by 8. 3 by 4 नहीं होगा, sorry. 4 by 6. 4 by 6 असं लिहू शकतो, ठीक आहे. This इन दोनों का एडिशन 0.5 आने को होना, 1 by 2 आने को होना, 1 by 2 आता. 4 by 8, it is 1 by 2, correct. Addition it is minus 1 by 2 आने को होना, जो आके है. Okay, hence is correct. Two by 5. Minus 2 by 5, okay. One by 10.
1/10, yes, exactly. 2/20 प्लस 2/5, आप उस तरह भी जा सकते हैं, और आप 1/2/5 प्लस 2, that is nothing but a 1/2 minus 1/2. Is it correct? इसका एडिशन -1/2 आने को ना, जो कि आता है. ओके, तो इट इज करेक्ट. Now we move to the displacement factor because of sway. Because of what? Sway. That's why we want third factor, that is displacement factor, or we can say lateral displacement factor. यानी अभी तक सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल स्टिफनेस फैक्टर आया था आरएफ, अभी आपका डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी देगा. तो डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये गलत हुआ तो पूरा कैलकुलेशन गलत होता. ओके, पूरा कैलकुलेशन गलत होता. स्टेप नंबर 3. ओके, स्टेप नंबर 3. Calculate displacement factor. Displacement है, that's why del. That's why we took this del. Del denotes to displacement. Now, ये थोड़ा बड़ा टेबल है, थोड़ा बड़ा टेबल है. I need to आपको थोड़ी ज्यादा जगह लगने वाली है. ओके, स्टोरी. कॉलम टाइप और कॉलम मेंबर. Length LR, reference length. LR, it is nothing but a reference length. C, it is equals to LR by L. Then it is U, then K, then minus 3/2 KC, then UKC, and then del it is equals to, that's 3/4, 3/2 divided by summation of UKC. UKC square, sorry. Minus 3/2 KC divided by summation of UKC square. This is a total table. This table for all the members. This table for only column members. Only column members. Please denote this. Okay, only for column members, because of there is a not a member, there is a column member. तो क्वेश्चन आ सकता कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर. जब हम कैलकुलेटिंग करते हैं डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, तो वो बीम मेंबर के लिए रहता, कॉलम मेंबर के लिए रहता, दोनों के लिए रहता, या नन ऑफ द अबव. तो योर आंसर इज ओनली फॉर कॉलम मेंबर, ओनली फॉर कॉलम मेंबर. ओके, दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कानीस. So what is your LR? LR is reference length, मैंने अभी अब बताया, तो ये सब कुछ मैं आपको अभी लिख के दे देता. What is? Okay. सबसे पहले C it is. What is C? C it is equals to displacement coefficient. Sorry, CD. That is del. Sorry. C. Displacement coefficient factor. What is U? Stiffness coefficient factor. U it is equals to 1. क्लास चालू है. 1 minute. Okay. U it is equals to 1 for
fixed support. U is equals to 1 for fixed support. U is equals to 3/4 for hinge support. यहाँ पे कंटिन्यूअस वगैरह नहीं रहेगा, यहाँ पे सीधा सीधा देखो सपोर्ट, यहाँ पे सीधा सीधा आपको हिंज और फिक्स सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आप कॉलम मेंबर देख रहे हैं। बीम मेंबर में कंटिन्यूअस वगैरह देखना पड़ता। 3/4 सॉरी, L इट इज इक्वल्स टू हिंज, हिंज कॉलम के लिए L it is equals to L into 1.5 and L it is equals to fixed column के लिए L it is equals to into 1. So LR take greater लेंथ, प्लीज ये समझ लो, ये समझ गया तो पूरा समझ जाएगा। ओके, बाकी कुछ भी नहीं है, फालतू है बाकी फिर। ओके, L इट इज इक्वल टू हिंज, हिंज जो भी कॉलम है, जैसे ये हिंज कॉलम है तो इसको, इसकी लेंथ कितनी रहेंगी, इसकी लेंथ रहेंगी L इंटू 6 इंटू 1.5 दैट इज 9, दैट इज 9। स्टोरी कितनी है, स्टोरी सिर्फ और सिर्फ 1 है, पहली स्टोरी है। कॉलम मेंबर कौन से है आपके, कॉलम मेंबर आपके कौन से रहेगा, इस कॉलम मेंबर इज बी ए एंड सी डी, ऊपर से देखना बी ए एंड सी डी, दैट इज बी ए सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट आपका यहाँ पे आने को ना, एंड सी डी इज आवर सपोर्ट इट इज हिंज एंड इट इज फिक्स्ड। सो द नेक्स्ट इट इज व्हाट इज L it is 9, what is L it is 6 into, यहाँ पे 6 into 1 that is 6, 6 into 1.5 that is 9. Okay, what is LR? LR यानी larger length, इन दोनों में से larger it is 9. What is C? C it is equals to displacement coefficient factor, that is nothing but LR by L, LR by L, 9/6, 1.5. Here is 9/9, 1. What is U? Stiffness coefficient factor. What is U? Stiffness coefficient factor. Stiffness coefficient factor for hinge support it is equals to 1. Sorry, for fixed support it is equals to 1. For hinge support it is equals to 3/4. ये हमने लास्ट इसमें ही देखा है. So that's why this factor it is equals to 1, it is equals to 3/4, 0.75. What is K? K it is equals to stiffness. What is the stiffness? Stiffness for BA it is equals to 1/6, or we can take I/6. I/6. And here is CD. CD it is equals to I/8. I/8. Stiffness of that member. Stiffness of that मेंबर, वो मेंबर के लिए क्या स्टिफनेस है वो मुझे चाहिए। तो ये बीए के लिए क्या मेंबर की स्टिफनेस है मेरा, I/6 है, दैट्स व्हाई आई रूट हियर I/6। एंड द नेक्स्ट सीडी मेंबर के लिए क्या स्टिफनेस है, I/8 है, तो मैंने I/8 यहाँ पे लिख लिया। गॉट इट? फिर से बता रहा हूं मैं। ओके, बीए के लिए यहाँ पे स्टिफनेस मैट्रिक्स में मैं यानी स्टिफनेस इसमें आप जाओगे अपना रोटेशनल स्टिफनेस फैक्टर के टेबल में, वो टेबल से आप इसके लिए रिलेटिव स्टिफनेस जो भी आपका है दैट इज के, दैट रिलेटिव स्टिफनेस इट इज नथिंग बट के। तो के आपको लिखना है यहाँ पे के की वैल्यू, तो ए बी के लिए आपका फिक्स के लिए है I/6 है, तो मैंने I/6 लिख लिया। और यहाँ पे क्या है I/8 है, तो मैंने I/8 लिख लिया। ओके, अब मुझे ये बता -3/2 के इंटू सी मुझे करके बताओ, दैट के इंटू सी, दैट के इंटू सी करके मुझे बताओ वहां पे कितना रहेगा। इंटू 1.5 आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, 1.5 यानी 3/2। ओके, सो 3 यानी 2 I/4, इज इट करेक्ट? I/4 इंटू -3/2 अगेन
व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इट इज इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में होना मुझे वैल्यू। -3i/8 हाँ, -3i/8 3i/8, ओके, -3i/8 करेक्ट वैल्यू, 3i/8। and this into this, सर बोलना कुछ भी पूछ रहे कि आप this into this, okay, 3/16 -3i/16, 3i/16 because of this is 1 and I को 3 इंटू हो जाएगा -3 और यहाँ पे 2 इंटू 16। So again UKC square, अब U that is U, that K and that C, तो UKC का K स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर होगा, तो U इंटू K इंटू C, बताओ क्या क्या रहेगा? U इंटू K is 1/6, हाँ क्या? 3i/8 3i/8, आपने इसका स्क्वायर किया? हाँ ओके, द नेक्स्ट submission, I want submission. Next guys, next. See again, 1 into 3/4 into i/8, तो 3/4 into i/8 होगा 3i/32 3i/32 32 3i/32 plus 3i/8, 3i/32 plus 3i/8, 15/32 15/32 15/32 I गेट कैंसल बिकॉज ऑफ इधर भी I है और इधर भी I है। तो आप अभी बताओ दिस आपको अभी क्या करना है, देखो दैट इज सबमिशन एंड दैट इज वैल्यू। तो वैल्यू बाय 3i/8 मैं यहाँ पे लिखता, वहां पे कचरा होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखना है। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आपका डेल फॉर मेंबर BA। सो पहली वाली वैल्यू क्या है मेरी? पहली वाली वैल्यू है -3i/8 बाय 15i/32। What is my value in fraction? वो मुझे वहां पे बता दो आप। I get cancel. -4/5 -4/5 0.8 भी हो सकता है, डायरेक्टली निकलता, लेकिन आप फ्रैक्शन में ही लिखो, ठीक है। -4/5 -4/5 की वैल्यू एग्जैक्ट निकलती ना 0.8, एग्जैक्ट 0.8 ही है ना ये, कुछ पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आता ना? नहीं सर, 0.8। तो 0.8 भी आप लिख सकते हो और -0.8 भी आप लिख सकते हैं और -0.8 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है 4/5 के आप लिख लो, या फिर आप जब कैलकुलेशंस करोगे तो आपको पॉइंट में वैल्यू लिखना ठीक रहेगा। ओके, देन इट इज CD भी जब हम जाएंगे तब मेरा क्या है -3i/16 डिवाइड बाय 15i/32। I get cancel। -2/5 -2/5 that is 0.4, -0.4 and -0.8। ओके, -0.8 -0.4। ओके, आप यहाँ पे -0.4 भी लिख सकते हैं, ओके, डायरेक्टली, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट यानी उसके बाद 0000 है, तो आप उसमें लिख सकते हैं। अगर उसके बाद 000 नहीं है, आप कुछ ना कुछ इसको राउंड अप करके भी वैल्यू नहीं आ रही है, जैसे कि यहाँ पे नहीं आती,
यहाँ पे आती -0.4, यहाँ पे -0.1, ओके, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे दिक्कत जाएंगी आपको, इसलिए आप फ्रैक्शन में लिखे तो बेटर रहेगा, इसलिए मैंने वहां पे फ्रैक्शन में आपको बताया। ओके, नाउ वी मूव फॉर साइकिल। तो साइकिल आज नहीं होती इसकी, क्योंकि साइकिल बहुत बड़ी है, सो दैट्स व्हाई साइकिल के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आज लेने वाला था। नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो लूंगा, टुमारो मॉर्निंग 9:30 AM। ओके, 1 मिनट गाइस।